പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ very close friend Dipen Prajapati, one of the best migration agents in Australia. He's here with me. Dipen, you want to say hi to my viewers? Hi everyone, Dipen here. How are you guys? So, ഞാൻ ഡിപ്പെൻഡ് അടുത്ത് I'm going to ask a lot of questions. Last time, few of my friends told me, Gauri, don't make videos in Malayalam. Okay? In fact, Dipen always. I think you know, I was the first one who commented this thing that make video with English subtitle or in Hindi. Hindi, So exactly. wide spread of audience can understand. Exactly. तो मैंने अभी सोचा है कि to do videos in Hindi and English and a bit of Malayalam as well, ताकि pan India हो जाए, pan India. So anyways, we are here to discuss about migration. So he's one of the best migration agents, as I said, in Australia. He's based out in Queensland. On a special request, Dipen has come here to Melbourne to do this video. Thanks to Godwin for sponsoring my trip first of all. Otherwise I could not be, coming here. It's not possible without you. So thank you very much. Thank you. Okay, anyways, I didn't sponsor this ticket. He flew in, so that's all right. So, Dipen, let's get into the migration sector. Okay, there is a lot of people coming in from India because the borders in Canada is closed now. तो बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं. Although it's expensive, the courses are very expensive, but people want to come to Australia because the life is nice, the weather is nice. True. Queens, I mean, if you go to Canada, वहाँ पर मतलब बर्फ है, इतना बर्फ है कि काम भी नहीं कर सकते. और बच्चे वहाँ इसलिए जाते हैं because कॉलेज में भी नहीं जाना है, घर पे बैठ के पढ़ाई करो. सही बात है. True. So now the scenario has changed. A lot of things have come in, and Canada is restricting people. So people are trying to come to Australia. So the questions what few of them asked me was, Australia after finishing that 12th और डिग्री फिनिश करके जो आ रहे हैं उनके लिए बेस्ट कोर्स क्या है? देखो, I'll do this in Hindi if you don't mind. हाँ, or in हिंदी में English. हिंदी में Anything करो, is fine, right? हिंदी में करो, हिंदी मतलब लोगों को हिंदी Okay. में सुनना है. हिंदी में सुनना है हिंदी तो में बोलो, हाँ. I think I'm the first person on your vlogs that will making a video in Hindi. हिंदी, हाँ, आप Okay, हिंदी में चलो, बोलो. कोई अब बात वो भी नहीं. आपने इंग्लिश में बोल दिया, हिंदी में बोलो. हाँ. चलो, हम भाई फर्स्ट टाइम बना रहे हैं हिंदी में ये वीडियो. तो जो 12th करके बच्चे आना चाहते हैं, whoever wants to come to Australia, for them जो अच्छे कोर्सेज रहते हैं वो डिपेंड करते हैं उनके 12th के जो भी स्ट्रीम के अंदर वो पढ़ाई करते हैं उसके ऊपर. जैसे कि किसी ने किया है साइंस के अंदर, किसी का कॉमर्स का बैकग्राउंड है या किसी का आर्ट्स का बैकग्राउंड है, तो वो आप अपने कोर्सेज उस हिसाब से चुनो जिसका आपका बैकग्राउंड है. तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल किसी ने अगर मान लो कि 12th के अंदर उनका लेट्स से बिजनेस साइड का था स्टडी, ठीक है, कि कॉमर्स का था, तो उनके लिए बढ़िया कोर्सेज रहते हैं. जैसे कॉमर्स की फील्ड हो गई या बिजनेस के रिलेटेड कोर्स हो गए, तो वो लोग आईटी में भी एडमिशन ले सकते हैं. वो कोर्सेज उनके लिए थोड़े अच्छे रहते हैं और इट कम्स विद गुड करियर प्रोस्पेक्ट एज वेल. बाकी बच्चे जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, जिसमें इंजीनियरिंग हो गया, आईटी हो गया, हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो गया, एजुकेशन राइट साइड के प्रोफेशंस हो गए. ये सारे कोर्सेज आजकल बहुत ही डिमांड में है ऑस्ट्रेलिया में. और इफ यू लुक एट द प्रीवियस हिस्ट्री ऑन दिस कोर्सेज, दे हैव बीन ऑलवेज इन डिमांड and it will be in demand for sure in future as well. Dipen, my question is, मतलब मुझे भी ये डाउट बहुत बार आया है. If someone, if like a student has taken commerce, जैसे कि मैंने CEBA लिया था, computer science with commerce. Correct. So can I get enrolled in registered nurse का course? वो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होता है. जो अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड जैसे मैंने बोला कि वो नहीं होता है, तो दैट इज एक्सक्लूसिवली ओनली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 12th में साइंस का स्टडी किया हुआ है. अगर आपका स्टडी नहीं है तो फिर यहाँ पे आके आपको पहले कोई छोटा सा कोर्स करना पड़ेगा, लाइक सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स, और उसके बाद आप बैचलर्स के लिए वहाँ पे एनरोल कर सकते हो. तो डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर पॉसिबल हो सकता है. ओके. बट हाँ, उसमें भी वो थोड़ा रहता है कि आपका झंझट रहेगा. प्री-रिक्विटाइज होगा. ओके. मतलब कुछ भी करो, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बनेगा, नहीं थोड़ा बनेगा. स्ट्रगल करना पड़ेगा. ओके. So the next question what I have for you is, जो बच्चे मास्टर्स करने के लिए आते हैं, I have seen like when I came in as a student, there were a lot of students जिसने MBA लिया और उन्होंने डाउनग्रेड करके कारपेंटरी, कुकरी लिया. तो आजकल मैंने सुना है कि वो पॉसिबल नहीं है. लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखो, पॉसिबल बिल्कुल नहीं है. यू हर्ड इट राइट गॉडी, बिकॉज जो अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो अनाउंसमेंट किए थे
उसमें से वन ऑफ द अनाउंसमेंट वाज दिस कि जैसे कि आपका जो लेवल है क्वालिफिकेशन का, कि अगर आप मास्टर्स लेके पढ़ने को आए हो तो आपको मास्टर्स का लेवल ही कंटिन्यू करना पड़ेगा अगर आप अपना स्टूडेंट वीज़ा सेफ रखना चाहते हो। अगर आप डाउनग्रेड करते हो और डिपार्टमेंट्स को पता चल जाता है तो वो स्ट्रेट अवे कैंसिल कर सकते हैं आपका वीज़ा। तो आई वुडंट माइंड वापस घर जाना पड़ेगा। बिल्कुल अपना पूरा बिस्तरा बांध के वापस चले जाओ, यहाँ पे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जनरली लॉट ऑफ स्टूडेंट यूज्ड टू डू दिस मिस्टेक इन अ पास्ट कि वो अपना कोर्स सीधा डाउनग्रेड कर देते थे, बट अभी ये थोड़ा स्ट्रिक्ट हो चुका है। तो मेरा तो सबको वही एडवाइस रहता है कि अगर आप जो पढ़ने आए हो वही चीज़ में कंटिन्यू करो। पीआर सभी स्टडी के अंदर है, ऐसा नहीं है। इवन यू टोल्ड मी वंस, इफ यू रिमेंबर, यू नो कि भाई मेरा तो एमबीए किया हुआ है, मैंने बैचलर ऑफ बिजनेस किया है, मेरा तो पीआर है ही नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप कोई भी कोर्स करो, बिजनेस साइड हो, इंजीनियरिंग साइड हो, आईटी का हो, नर्स का हो, या कोई भी हो, इवन ट्रेड कोर्सेज, सारे के सारे कोर्स में आपको परमानेंट रेसिडेंसी के ऑप्शन बिल्कुल मिल जाएंगे। सिर्फ एक ही होता है इसके अंदर कि आपको जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो उसकी फुलफिल करनी पड़ती है। कि जैसे कोई, जैसे बेसिकली एमबीए का कोर्स अगर आप बात करें तो मोस्टली स्टूडेंट जैसे मेरे को आते हैं, ठीक है, कंसल्टेशन के लिए पहले ही आते हैं, उनका माइंडसेट होता है कि मैं पीआर तो होऊंगा ही नहीं ये कोर्स में। देन आई आस्क देम कि भाई आपको किसने बताया है? वैसे मेरा जो पिछड़ा वाला एजेंट था, पुराना एजेंट था, जहाँ से भी वो आए वही कंट्री का, तो उन्होंने ये बोला है कि इसमें तो पीआर ही नहीं है, आप कोर्स चेंज कर दो। तो बिफोर डूइंग दैट डू योर ओन रिसर्च, डू नॉट लिसन टू समवन कि जिसका आपका कोर्स चेंज करवाने में ज़्यादा बेनिफिट रहता है। आप पहले देखो अपना कैलिबर है, अगर आपके पास स्किल्स है तो कोई भी कोर्स पढ़ो आप जॉब सिक्योर करो, अपना पॉइंट्स बनाओ और आराम से पीआर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मतलब जो बंदे इंडिया से यहाँ आ रहे हैं उनके लिए बेस्ट कोर्सेज आपका हिसाब से एक टॉप 5 पॉपुलर कोर्सेज क्या है? मतलब यू नो बिकॉज आई हैव हर्ड यू नो व्हेन आई केम इन एज अ स्टूडेंट टू ऑस्ट्रेलिया, जो अब मेरा जो एजुकेशन एजेंट ने मेरे पास बोला, हाँ भाई तू, मैंने सीपीए पढ़ने के लिए आया था, देन आई चेंज टू इंटरनेशनल टूरिज्म। तो मैंने सीपीए जब पढ़ने गया था, जो मेरा एजुकेशन एजेंट ने जो मुझे बोला कि यार गॉडविन यू नो यू हैव टू डू दिस कोर्स, आई टुक दैट कोर्स, आई डिडंट हैव अ चॉइस, दे सेड दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू। तो मतलब ऐसा बहुत सारे लोगों को मतलब यू नो दे मिसलीड द स्टूडेंट्स विथ व्हाटएवर, मतलब जो भी यूनिवर्सिटी के साथ उनका कनेक्शंस होता है उनके साथ उन लोग मिसलीड करते हैं। तो आई वांट यू टू गिव मी अ टॉप 5 कोर्स which are best, like कॉमर्स, आईटी, जो भी है, मतलब मेडिकल फील्ड, उसमें से टॉप 5 कोर्सेज, मतलब पॉपुलर कोर्सेज। इसमें टॉप 5 कोर्सेज में मैं यही रेकमेंड करता हूँ कि वो चेंजेस होता रहता है वो समय के साथ साथ, क्योंकि जो डिपार्टमेंट की पॉलिसीज चेंज होती रहती है, उनका जो स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट होता है वो चेंज होता रहता है। तो आप कोर्स उस हिसाब से चुनो, ना कि कोई एजेंट आपको सजेस्ट करता है कि यही कोर्स करना है। सबसे पहले आप अपना होमवर्क फिर खुद करो, ग्राउंड वर्क करो, अपना जो भी कोर्स आप पढ़ना चाहते हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपको लगता है कि मेरा फ्यूचर है या आई एम इंटरेस्टेड, मैं जॉब सिक्योर कर सकता हूँ, वो वाले कोर्सेज करो। प्लस वो अपना देखो कि वो आपका जो पीआर बनता है वो किस ऑक्यूपेशन में बनता है ये कोर्स फिनिश करने के बाद। तो वो कोर्स पढ़ाई करो जिसका लिस्ट में नाम हो, ऑक्यूपेशन लिस्ट में हो। सॉरी, जब आप लिस्ट बोलते हो, लिस्ट का नाम भी एक बार बोल दो। स्किल ऑक्यूपेशन बेसिकली बहुत थोड़ा टंग ट्विस्टर है, या फिर ये बोल सकते हो कि थोड़ा SOL लिस्ट, राइट? नहीं, स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट इज अ जनरल वर्ड, बट उसके अलावा भी उसका नाम आगे आता है, विच इज स्टार्ट फ्रॉम लाइक 3 है बेसिकली, विच इज वेरी कंफ्यूजिंग। 3 पॉपुलर जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है, जिसमें होता है MLT SSL, मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्किल लिस्ट। आई नो इट्स वेरी लॉन्ग नेम, चलो छोटा कर देते हैं इसको एक। दूसरा होता है STHOL, जो कि बोलते हैं शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजिक स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट। अभी एक और छोटा करते हैं, ठीक है, हो गया ROL। हाँ, ROL तुमने सुना? ROL मैं आपका साथ इतना साल मैंने आपका साथ काम किया, मैंने तो अब तक सुना नहीं। पता नहीं क्या कर रहे थे तो I know you are not paying attention to my instructions, so होता है कभी कभार, that's okay। नहीं, he was a very good colleague to me, I must say, he was amazing। बोलना पड़ेगा कैमरे के सामने। इसका व्लॉग में आके मैं इसके बुरा करेगा, कैसा लगता है? तो थोड़ा बहुत बोलना पड़ेगा इसके लिए। तो हाँ,
तीसरा जो है वो है ROL, रीजनल ऑक्यूपेशन लिस्ट। तो ये 3 ऑक्यूपेशन लिस्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और रीजनल वाले। सबसे ज्यादा बेनिफिट वाला होता है वो लॉन्ग टर्म वाला होता है, जिसको MLT SSL बोलते हैं। ST-SOL और ROL में भी आप परमानेंट रेसिडेंसी का ऑप्शंस मिल जाएगा, लेकिन हाँ उसमें वो एक इंडिपेंडेंट स्किल वाला वीजा होता है, वो नहीं आप डाल सकते हो। बट इट डज नॉट मीन कि आपका PR ही बंद हो जाएगा पाथवे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 100% PR हो सकते हो, चाहे कोई भी ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपका नाम हो। सॉरी, आपका नाम का ही, आपके ऑक्यूपेशन का नाम। तो मतलब अभी हमने ऑलमोस्ट हर सेक्टर में टचअप कर लिया है। तो अभी मतलब मेरा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब आई हैव हर्ड पीपल टेलिंग मी कि भाई मेरा 65 पॉइंट्स है, ठीक है, क्वींसलैंड का रिक्वायरमेंट 70 पॉइंट्स है या 75 है, मतलब इट कीप्स चेंजिंग, राइट? तो उसके लिए व्हाट आर ऑल द सप्लीमेंट्री थिंग्स व्हाट दे कैन डू जिससे उनका पॉइंट्स बढ़ सकते हैं? देखो, पॉइंट्स बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका है इंग्लिश टेस्ट। अब मुझे भी देख के बोला करो ना। हाँ, हाँ कैमरा पे देखो और मुझे भी देखो। तू सुन रहा है ना, उनको दिखाना है, उनको समझाना है। हाँ बोलो बोलो। चलो तेरे को भी समझा लेते हैं। हाँ मुझे समझा दो। हाँ हाँ, आई नो कि आपको आदत हो गया ना कैमरा देख के बात करने का। हाँ मैं समझ गया। वो मेरा आदत ही है पहले से, कैमरा देख के मैं एकदम अटेंशन हो जाता हूँ, पूरा फोकस कैमरे पे जाता है। तो देखो, जो पॉइंट्स होते हैं, सबसे आसान तरीका है जो पॉइंट्स सबसे ज्यादा अर्न करने का, वो है इंग्लिश टेस्ट, ठीक है, जिसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर लाओ। जैसे आइल्स का एग्जाम हो गया, आइल्स के एग्जाम के आप 7 बैंड ईच ले लेते हो। जैसे रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग 4 मॉड्यूल होते हैं, चारों मॉड्यूल के अंदर मिनिमम आप 7 ईच लेते हो तो वो 10 पॉइंट देता है। अगर आप ज्यादा लेते हो 8 ईच, जो कि सुपीरियर इंग्लिश बोलते हैं, तो वहाँ पे आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। मतलब 60 से डायरेक्ट 80 बिल्कुल। हाँ। तो उसके अलावा देखो, पॉइंट्स आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे कैलकुलेट होते हैं। वो आपकी एज के ऊपर कैलकुलेट होते हैं। फिर होता है आपका लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, कि आपने बैचलर्स पढ़ाई की है, मास्टर्स पढ़ाई की है, डॉक्टरल हो या PhD किया हो या डिप्लोमा किया है, उस हिसाब से आपको मिलते हैं पॉइंट। उसके अलावा एक एडवांटेज रहता है कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई की है तो उसमें आपको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जो कि ओवरसीज स्टूडेंट्स को नहीं मिलते। ट्रू। तो फिर वो एक हो गया। और इसके अलावा जो कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीज रही थी पॉइंट्स के मामले में, मैरिटल स्टेटस की, जो सिंगल्स के लिए बहुत ही अच्छा था कि उनको स्ट्रेट अवे 10 पॉइंट्स दे देती है गवर्नमेंट। बट जिनकी शादी हो चुकी है, मैरिड लोग हैं, उनके लिए थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। वो पार्टनर के पॉइंट क्लेम कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जैसे कि आपका पार्टनर अगर स्किल्ड पार्टनर है, ठीक है, कि उसका भी ऑक्यूपेशन है, वो स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में है और उनका इंग्लिश भी अच्छा है, वो 6 बैंड ईच ले सकते हैं, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है सिंगल के जितना इक्विवेलेंट 10 पॉइंट्स मिलता है। बट उसमें भी एक अच्छी बात है कि अगर आपका पार्टनर है जिसका ऑक्यूपेशन नहीं है स्किल लिस्ट में, बट वो अगर 6 बैंड ईच ले लेते हैं तो स्टिल यू कैन क्लेम पॉइंट। बट उसके अलावा अगर आपका पार्टनर कुछ नहीं करता है तो फिर डिवोर्स डिवोर्स ले लो, 10 पॉइंट क्लेम करो। नहीं हुआ है ऐसा काफी बार। मैंने सुना था इनफैक्ट कि मतलब जस्ट बिकॉज़ उसको किया जाए तो उसने डिवोर्स कर दिया। देखो, बीइंग अ कंसल्टेंट मेरे पास बहुत लोग आते हैं, यही चीज पूछते हैं, सर कि ये करना है, वो करना है, ये शादी के लिए मेरा 10 पॉइंट जा रहा है, मेरा पार्टनर नहीं कर पा रहा है पॉइंट्स, तो मैं क्या करूं? वो सामने से ही फिर मेरे को एडवाइस देते हैं मैं डिवोर्स ले लूं। तो इट्स वेरी कॉमन, बट जनरली मैं उनको वही रेकमेंड करता हूँ कि इट्स नॉट समथिंग यू शुड डू इट। इंस्टेड ऑफ दैट कि आप अपना एलिजिबिलिटी बनाओ, अभी आपके पास वीजा है, आपके पास टाइम है, देयर आर लॉट ऑफ वेज यू कैन मेक योर पार्टनर एलिजिबल टू क्लेम दैट पॉइंट्स। बट हाँ, वो फिर आपका सबका पर्सनल चॉइस है, उसमें तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। एग्जैक्टली। और रीजनल स्टडी का भी मतलब 5 पॉइंट मिलता है ना? दैट्स अ गुड पॉइंट एक्चुअली। जो ऑस्ट्रेलिया के मैंने आपसे कुछ तो सीखा हो, कुछ तो सीखा है, यू आर राइट। थोड़ा बहुत मेरी संगत का असर है। नहीं, बट ये अच्छी चीज है, थोड़ा थोड़ा मेरे को रिमाइंड करता है ना, वो थोड़ा याद आ जाता है पुराना टाइम, जो मैं तेरे को रिमाइंड कर रहा था कि ये कर रहे हैं, वो करना है। अभी वो टाइम उल्टा हुआ है, अब मेरे को रिमाइंड कर रहा है। तो रीजनल जो स्टडी होती है ऑस्ट्रेलिया के जो लो पॉपुलेशन एरियाज है, एक अच्छी मस्त बात बताता हूँ, इट्स अ फैक्ट की जो आपको शायद ना पता हो। ऑस्ट्रेलिया में रीजनल किसको बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 3 ही जगह ऐसी है जो नॉन रीजनल है, उसके अलावा पूरा ऑस्ट्रेलिया रीजनल है। कैन यू गेस द नेम्स?
रीजनल ऑस्ट्रेलिया का नहीं, जो रीजनल नहीं कंसिडर करते वो जगह है। मेलबर्न सीबीडी, ब्रिस्बेन सीबीडी, सिडनी सीबीडी। करेक्ट। किसने बताया? आपने सिखाया? Looks like we have done your homework before this vlog. नहीं, मतलब जब मैंने काम किया तो मैंने सीखा था थोड़ा बहुत, मतलब Okay, चल याद है, अच्छी बात है। मतलब हॉर्लिक्स पीता हूँ, टॉलर स्ट्रॉन्गर शार्पर। हाँ, वही हॉर्लिक्स का कमाल है ये सब। मैं बॉर्नविटा पीता था। हाँ, अभी नहीं पीता। तो हाँ, जो रीजनल एरियाज में अगर आप पढ़ाई करते हो 2 साल की पूरी, तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। उसके अलावा एक बढ़िया ऑप्शन है जो है ट्रांसलेशन एग्जाम की। अगर आपका मेन लैंग्वेज है, जो आपका मदर टंग है, वो अगर इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश के अलावा कोई और है, तो नाटी का एक CCL नाम का टेस्ट आता है, क्रेडेंशियल कम्युनिटी लैंग्वेज। वो ट्रांसलेशन एग्जाम ही होता है बेसिकली। की एग्जाम्पल की, अब मेरा नेटिव हिंदी है, ठीक है, आपको गुजराती है, मेरा गुजराती है, चलो गुजराती ले लेते, मेरा नेटिव गुजराती है, तो मैं गुजराती से इंग्लिश में वो टेस्ट दूंगा, मतलब ट्रांसलेशन का। तो वो मैं अगर पास कर देता हूँ तो मेरे को 5 पॉइंट मिलते हैं। और उसकी बढ़िया चीज ये है कि जो वैलिडिटी है ये नाटी टेस्ट की, वो है 5 साल की। ओके, तो अभी आज दिया, ठीक है, 5 साल की तो validity ये अभी वी आर इन 2024, तो 2029 सॉरी नहीं, कितना हुआ है, 29, हाँ 29 तक वो आपका वैलिड रहेगा। जो कि ये सबसे, जो भी पॉइंट्स आप गेन करते हो वो मैक्सिमम 3 साल के लिए या 2 साल के लिए एलिजिबल होते हैं, बट यही एक जो नाटी का एग्जाम है वो 5 साल के लिए वैलिड होता है। ओके, तो आई थिंक दे हैव इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली, मलयालम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। हाँ, मलयालम भी है, बहुत सारे साउथ इंडियन लैंग्वेजेस दे हैव इंट्रोड्यूस्ड, तमिल भी है, तेलुगु भी है, बहुत Okay, सारे लैंग्वेजेस। okay, तो okay. साउथ इंडिया की भी काफी सारे लैंग्वेज है, नॉर्थ की भी है, वेस्ट की भी है, इवन पूरा मतलब इंडिया का, चाहे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कुछ भी ले लो, कोई भी लैंग्वेज अवेलेबल मतलब है, बहुत सारी है। ओके ओके, तो अभी हमने मतलब वी हैव टच बेस ऑलमोस्ट ऑल द यू नो सेक्टर्स। अभी मतलब द लास्ट क्वेश्चन वुड बी, लॉट ऑफ पीपल आर नाउ कमिंग इन कैरियर्स वीजा, मतलब आना चाहते हैं या उसका क्या चल रहा है, मुझे आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। सो एक कैरियर्स वीजा का बारे में, और people from UK, Ireland, nurses are migrating to Australia, and students who have done their nursing in India, they want to come to Australia. तो उनका आने का भी मतलब what are the things what they have to keep in mind? देखो, इसमें सबसे पहला जो बताया कि जो कैरियर्स वाला, ठीक है, तो जो कैरियर्स वाला जो वीज़ा होता है वो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा होता है, तो उसमें आप इंडिपेंडेंटली अप्लाई नहीं कर सकते हो। जो बाकी मोस्ट ऑफ द वीज़ा जो होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो आप इंडिपेंडेंटली अप्लाई करते हो। तो ये जो स्पेशली कैरियर वीज़ा है वो ऑफशोर से, वो अगर आपका एम्प्लॉयर है, आपके पास जॉब है यहाँ पे, आपने यहाँ से आने से पहले अगर आपने सिक्योर किया है, देन ओनली इट्स पॉसिबल। इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी प्लस प्रोसेस एज वेल। तो वो केस बाय केस डिपेंड होता है कि, बट हाँ, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है वो इंडस्ट्री के अंदर और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सिक्योर करता है, तो वो यहाँ पे वर्क वीजा पे आ सकते हैं, जो फर्दर वहाँ पे परमानेंट रेसिडेंसी देंगे। ओके। और रही बात जो यूएस, कनाडा, यूके, आयरलैंड से, यूएस, यूके, आयरलैंड से, तो जिसने मतलब नर्सिंग या कुछ ऐसे स्टडी की हुई है, तो उनका जो क्वालिफिकेशन है वहाँ का, ओवरसीज क्वालिफिकेशन वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से ही है, तो उनको स्ट्रेट अवे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मिल जाती है, और रजिस्ट्रेशन के बेस पे वो आगे काम कर सकते हैं और PR भी ले सकते हैं। स्पेसिफिकली फॉर इंडिया, तो जो इंडिया का नर्सिंग है बैचलर्स डिग्री का, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ का डिप्लोमा तो यहाँ पे चलता ही नहीं है, वैलिड ही नहीं है। तो अगर किसी ने करना पड़ेगा ना, हाँ, किसी ने डिप्लोमा किया है तो उनके लिए तो स्ट्रेट अवे यहाँ पे आके बैचलर्स की पढ़ाई करो। बट अगर किसी ने बैचलर्स किया हुआ है इंडिया में नर्सिंग का, BSc नर्सिंग, तो उनके लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेने के लिए 2 टाइप के ऑप्शन रहते हैं। एक होता है या तो आप यहाँ पे आके वो ब्रिजिंग प्रोग्राम फिनिश करो, जो कि अराउंड 1 साल का होता है, या तो फिर अगर आप एंक्लेक्स का जो एक टेस्ट आता है, वो टेस्ट अगर आप पास कर देते हो तो स्ट्रेट अवे आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो जो ओवरसीज नर्सिस है स्पेशली फ्रॉम इंडिया, उनको यही चीज ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो यहाँ पे। मोर टुवर्ड्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो भी सारे हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। Okay, so I think that was too much question for me. हाँ, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गया ना,
अभी तो मतलब I don't क्या think मेरे को फिर से बुलाने का है कि नहीं? नहीं अभी He तो wants to cover up everything at once, so you don't need to, you know, call you again. not call you again, but वो मेरा ticket sponsor, trip sponsor ना करना पड़े. तो he's trying to save some money. नहीं But वो I बात won't नहीं let है। you go like that. नहीं वो बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब आओगे ना, we will be discussing about more deeper things. Now people got an overview. हाँ. अभी हम लोग ऐसा चीजों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे जो मतलब people are not aware of, जैसे कि स्टूडेंट्स को क्या काम करना अच्छा होता है, उनका मतलब जो स्किल, मतलब जैसे कि प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, जैसे उनका पॉइंट्स बनता है, जब स्टडीज का टाइम पे 20 आवर्स ऑफ वर्क करेंगे तो उनका क्या होगा, मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में चेंज हो डिस्कस गया करेंगे। वहाँ पे 20 नहीं रहा, 24 आवर्स है वीकली Okay, एंड okay. 48 आवर्स फोर्टनाइटली। ये भी एक अच्छी चीज है। हाँ। स्टूडेंट को फोर्टनाइटली एक्स्ट्रा 8 आवर्स दे कैन वर्क नाउ मतलब- फ्रॉम जुलाई लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स। मतलब चिल मारने के लिए थोड़ा पैसा बच जाएगा। बनेगा क्यों नहीं, पैसा कमाओ, चिल मारो, एंजॉय करो और अपना पियर लो। सिंपल। दैट्स ऑल। So what I'm going to do is, जो इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में I'm going to give Dipen's phone number. I'm going to put a link where you can go and get his Don't Instagram. forget to put my Instagram handle. Instagram, yes, that's what I was going to say. Instagram, Facebook, Facebook, हाँ, everything. सब कुछ डाल दूंगा. So if you have any questions, book an appointment with Dipen, talk to him, and he's going to give you all information. Correct, Dipen? हाँ दूंगा Yeah, दूंगा। मेरा इसका followers नाम को लेके तो- आओगे तो हाँ। पक्का ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा मतलब थोड़ा ज्यादा पैसा भी चार्ज करूंगा। Anyways, guys, thanks for watching. If you have any questions, you can comment below, or you can send me a email or text or on my Instagram या Facebook, जहाँ आपको लगता है वहाँ पर कर लो, whatever is comfortable for you. And I'm going to, as I said before, I'm going to put all all your social media handles down below on the descriptions. So guys, thanks for watching. I'll see you guys on the next video. And I'll see you too guys. Thank you.